सत समुद्रों पार ਦੇ तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना दोस्त हनी वालिया। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਨਵਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪੀ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸੀ ਗੈਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਸਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 7 days 7 bands, ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਈਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? IELTS जो है, it's an international English language testing system. This is just a test to check the English language proficiency. Because we are living in a non-English speaking country, जहाँ पर हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बहुत कम जगह पर हम लोग इंग्लिश को कोशिश करते हैं बोलने की। तो जब भी हमें किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, वहां पर टोटली इंग्लिश कल्चर है। तो जब आप उस कंट्री में जाते हो तो वो चाहते हैं कि आप इस कंट्री में आ रहे हो तो ऑब्वियसली कम्युनिकेट तो करेंगे ही हम, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। सो फॉर दैट कम्युनिकेशन वी मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स व्हाई इट इज अ मैंडेट टेस्ट if you are moving to any of the country for the study visa। मतलब कि एक ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹੀ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ कंपनी को एस्टेब्लिश करने का कारण की है ਤੁਹਾਡਾ? देखिए सर, एक्चुअली 2004 में हमने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम है वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड। आज की डेट में जो हमारे ऑफिसेज हैं वो चंडीगढ़ सेक्टर 17C, अम्बाला सिटी विकास विहार, कुरुक्षेत्र सेक्टर 17 एंड सोनीपत गोहाना रोड पे है। सर थिंग इज दैट एक्चुअली ये स्टडी वीजा, वी आर स्पेशलिस्ट इन IELTS एज वेल एज इन स्टडी वीजा। होता क्या है कि एवरीबडी वांट टू गो अब्रॉड। आज की डेट में हायर एजुकेशन एक ऐसी चीज है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो मोस्टली थ्योरेटिकल है, बाहर की एजुकेशन वो प्रैक्टिकल है। तो मेन पर्पज क्या है कि यहाँ से बच्चा बाहर जाता है, बाहर जाके वो एक अच्छी एजुकेशन लेके वो इंडिया में आना चाहता हो तो इंडिया में भी वापस आ सकता है, और वहाँ पे सेटल होना चाहता हो तो कुछ कंट्रीज ऐसा है कि स्टडी के बाद उनको वर्क वीजा मिलता है। तो इस वेस्टर्न ओवरसीज का मेन मोटो यही है कि हम उन जेन्युइन स्टूडेंट्स को जो रियली में हायर एजुकेशन अब्रॉड से करना चाहते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको आइल्स करा के
उनका डिजायर्ड स्कोर दिला के उनको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, आयरलैंड, सिंगापुर, जिस भी कंट्री में वो जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, वहां उन बच्चों को भेजते हैं। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं वो मोस्टली टॉप रैंकिंग है, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में। तो एक बच्चा हमारे पास आता है तो उनको हम काउंसलिंग करते हैं कि सर ये पहले उनको इंक्वायरी फॉर्म भरना पड़ता है, उसके हिसाब से जो उसका इंक्वायरी फॉर्म है उसने अपनी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस लिखा है, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि सर आपको ऑस्ट्रेलिया में आप फलानी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, न्यूजीलैंड में आप यहाँ पे जा सकते हो, आपकी प्रीवियस एजुकेशन ये है तो फर्दर आप इस कोर्स को कर सकते हो। इस तरह से हमारा मेन मोटो ट्रांसपेरेंट वे में स्टूडेंट वीजा लगवाना है। तो हम आइल्स कराते हैं फर्स्ट, उसके बाद स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड में भेजते हैं। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰਾਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਆਓ, 5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ 5 5.5 ਬੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4.5 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਡ 5 5.5 ਬੈਂਡ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ पॉसिबिलिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि उस बैंड्स ਨੂੰ ਵਧਾ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका पहली अटेम्प्ट में 5 या 5.5 बैंड स्कोर आता है, बट बाद में उनको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली उनका डिजायर्ड बैंड स्कोर बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के स्टूडेंट्स को देखते हुए ही हमने एक स्पेशल कोर्स चला रखा है, दैट इज 7 बैंड इन 7 डेज। इस कोर्स में इट इज एन इंटेंसिव प्रेपरेटरी कोर्स। वी विल गिव ऑल द स्ट्रेटजीज, all the techniques how a candidate can score 7+ bands. It is a complete course in which we are providing only and only the master classes with the help of the multimedia, because आज के टाइम में किसी को भी पेपर पेन से पढ़ना ज्यादा मजा नहीं आता, तो हम सारी की सारी पढ़ाई प्रोजेक्टर के थ्रू मल्टीमीडिया से करवाते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ स्पेशल टिप्स ही देते हैं ताकि स्टूडेंट का रीडिंग में स्कोर अच्छा आ सके। राइटिंग में उसको कौन सा वोकैबुलरी लिखना है, दैट इज टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी, उसको नेट से सर्च नहीं करना पड़ता, बुक से नहीं पढ़ना पड़ता, हम लोग बताते हैं उसको। स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में हम प्रोनाउंसिएशन के उसको रूल सिखाते हैं, कौन से वर्ड के साथ क्या वर्ड आता है। लिसनिंग के लिए आइडियाज देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 या 2 टिप्स देने चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे सुन भी रहे होंगे शायद मुझे, तो मैं उनको 1-2 टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग रूल्स होते हैं सर जी। कौन सा शब्द कहां पर आकर चुप हो जाएगा और कौन सा शब्द अपनी वैल्यू रखता है, इन दोनों शब्दों में एक तालमेल होता है जी। अगर मैं एस वर्ड की बात करूं जी, तो एस वर्ड जो है इंग्लिश में वो बहुत पावरफुल वर्ड है जी। अब हम बोलते हैं लिसन, LISTEN जी, तो हम लिस्टन तो नहीं बोलते, टी साइलेंट हो गया। टी साइलेंट होने का मतलब है बिकॉज वहां पर वर्ड है एस। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड होता है फासन, सीट बेल्ट को बांधना, फासन द सीट बेल्ट जी, FASTEN जी। फिर से इसमें क्या हुआ, टी साइलेंट हो गया बिकॉज पावरफुल वर्ड कौन है, एस। इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन रूल सिखाए जाते हैं बच्चों को। बच्चों को पता ही नहीं होता कि बोलना क्या है, बट वो इंग्लिश सीख रहे हैं। एजुकेशन बोल रहे हैं तो चल ही रहा है एजुकेशन, जबकि एग्जैक्ट वर्ड है उसका एडुकेशन जी। तो इस तरह की प्रोनाउंसिएशन चीजें सिखाई जाती हैं जिससे बच्चा इंप्रूव करे। अगर मैं लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग में बहुत सारे बच्चे सुन लेते हैं बट एग्जैक्टली लिख नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल आंसर था 1:30 PM, बच्चे ने लिखा 1:30, तो वो कहेगा मैंने सुना तो ठीक, पेपर में भी ठीक लिख के आया बट मार्क्स तो नहीं मिले बिकॉज उसने ओमिट कर दिया, इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन भी ठीक नहीं है तो भी आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो बच्चे इग्नोर करते हैं जी, और वो बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं जी। जब हम अपनी 7 बैंड की क्लास लेते हैं, ये क्लास मेरा सुबह 9:30 बजे शुरू होता है, लगभग 5:30 बजे तक क्लास चलती है, 8 घंटे की क्लास है जी। पूरे 8 घंटे में सिर्फ एक हाफ एन आवर का लंच ब्रेक लेते हैं। इन बिटवीन टाइम हम स्टूडेंट को मॉर्निंग में जो सिखा रहे हैं साथ के साथ उसकी एक्टिविटीज की जाती हैं, सो दैट इन अ प्लेवे मेथड स्टूडेंट विल लर्न द बेसिक स्ट्रेटजीज ऑफ आइल्स, कि हमें आइल्स में इंप्रूवमेंट कैसे करना है, चाहे वो रीडिंग है, वो राइटिंग है, लिसनिंग है या स्पीकिंग। कुछ ऐसे ही बेसिक फंडास हैं जो स्टूडेंट सीखता है और अपना बैंड स्कोर लेता है जी। तो इस तरह से बहुत अच्छा सक्सेस रेट है हमारा 7 बैंड इन 7 डेज का। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर लेते हैं। यू कैन चेक आउट ऑन माई फेसबुक, you can check out on my website, all the links are available,
स्टूडेंट्स गिव देयर टेस्टिमोनियल्स एट दैट प्लेस, तो वहां से भी पता चल सकता है जी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर मैं यहाँ पे जी, प्लीज। आज हमारा अंबाला में या कुरुक्षेत्र में, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। उसका जो एक रीजन है, जो एकमात्र रीजन मैं देना चाहती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी टीचर, जो हमारी टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनकी क्वालिटी पे जाता है। यही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸਿੱਖੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि आइलेट्स ਦਾ एक्सपर्ट होना जरूरी है? दोनों की फर्क? करेक्ट सर। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि आजकल जगह जगह और बूथ लगे हुए हैं, आइल्स करिए, आइल्स करिए। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आइल्स का जो ऑनर है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, एंड द एग्जाम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय IDP ऑस्ट्रेलिया एंड द ब्रिटिश काउंसिल। सी वेस्टर्न ओवरसीज गॉट द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अवार्ड फ्रॉम IDP। मतलब कि तुसी उथों अवार्ड जितया होया? यस, फ्रॉम द लास्ट 2 years सर जी। अगर मैं ब्रिटिश काउंसिल की बात करूं तो वी आर द सिल्वर मेंबर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल। इसके अलावा मेरे पास जो ट्रेनर्स हैं, आई एम आल्सो वन ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल ट्रेन्ड फैकल्टी। हम लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि हमें बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, बिकॉज जो हम सिखा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में वेस्टर्न ओवरसीज में, वो कुछ भी मेरा नहीं है, मतलब कुछ समथिंग मेड बाय मी, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट मेड बाय मी। वट एवर द स्ट्रेटजीज, वट एवर द टिप्स वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट, दैट इज गिवन टू अस बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये नहीं है भी जी अगर मैनू इंग्लिश आंदी है तो मैं बच्चों को आइलेट्स सिखानी शुरू करता। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ टीचर की गल कर ली कि की तुहानू वो टीचर है वो सिर्फ इंग्लिश तक सीमित है या उन्होंने एक नॉलेज है या वो खुद उस आइलेट्स दे जिहड़े उन्हें सर्टिफाइड एक आइलेट्स का टीचर है या नहीं है। ये चीज़ां जरूर मैटर करदियां ने। तां अगे अगे इस प्रोग्राम करन दे विच सानू इन्नी खुशी हुंदी है जदों साडे कोई चुनिंदा एक्सपर्ट आंदे ने, साडे दर्शकां नू अवेयरनेस दिंदे ने कि आइलेट्स करवानी हर एक बंदे दे बस दा काम नहीं है। आइलेट्स अगर तुसीं ऑथोराइज्ड एजेंट तो ऑथोराइज्ड टीचर तो करदे हो तो तुहाडे बैंड्स 7 बैंड्स आने, जिवें 7 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 7 बैंड आने कोई औखी गल नहीं। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ आइलेट्स बच्चे नो इंग्लिश आनी जरूरी होती है या नहीं होती विदेश जाने के लिए खासकर? एक्चुअली यहाँ हर किसी का पैशन है कि मैं अब्रोड चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ, बट दोस्तों ऐसा कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं है जाने का। फर्स्ट बात है, अगर आप वहाँ जब जाओगे तो एज यू नो कि भी आज की डेट में एक ही लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। आपने किसी से कम्युनिकेट करना है तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। अगर आप विदाउट आइल्स किसी जुगाड़ से आप कहीं पहुंच भी जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, वहां जाके क्या बर्तन बांटे थोड़ी मांजने आपने। अरे आप किसी से बात करोगे इंग्लिश में तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर आप इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाओगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? जॉब नहीं मिलेगी तो सरवाइव कैसे करोगे? तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। उसके लिए आइल्स जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है। अगर आप अच्छे स्पीकर हो इंग्लिश में तो भाई साहब बाहर जाने का दोस्तों फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपने सरवाइव करना है तो उसके लिए दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करोगे तो वो इंग्लिश में ही होगा, तभी आप सरवाइव कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पे कि दुनिया काफी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं मार्केट्स में, तो आप क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट काम है, ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट वीजा एक ट्रांसपेरेंट है, हर चीज अवेलेबल वेबसाइट्स पे है। वो पर्टिकुलर कंट्री चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री की वेबसाइट्स को सर्च करो। इमिग्रेशन की हर एक एम्बेसी की वेबसाइट्स बनी हुई है, रूल एंड रेगुलेशन सारे उस पे बने, उस पे भी आप देख सकते हो। तो आपने ये भी देखना कि कोई जो आपका वीजा लगवा रहा है क्या वो रियली में एक जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। अगर वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो मैं एक क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर हूँ, क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर। एंड मेरी जो मेंबरशिप बोलोगे तो वो है QEAC नंबर I362। इसके अलावा वेस्टर्न ओवरसीज CIC का भी मेंबर है, कनाडा इंडिया एजुकेशन काउंसिल का। इसी तरह मैं IEA का भी मेंबर हूं, इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह मैं यूरोपियन इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मेंबर हूं और मैं ISANA का भी मेंबर हूं। मतलब ये सारी मेंबरशिप और ये जो टेस्ट मैंने किए हैं तो वो मैंने सेल्फ स्टडी करके किए हैं। तो सेल्फ स्टडी, जैसे एक बच्चे को आइल्स करने के लिए पहले टीचिंग की जरूरत होती है, पढ़ना पड़ता है, कोई पेपर देना पड़ता है, इसी तरह ये आपने क्या नाम है, अगर आपने क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट बनना है तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, वो टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं।
ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਮ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? IELTS में there are 4 modules: reading, writing, listening and speaking. Out of the 4 modules, listening तो students interesting वे में कर लेते हैं, because क्या है, सुनना ही तो है और सुनने के बाद आंसर्स को लिखना है। उसमें सिर्फ जो एक चीज बच्चे को स्किल सीखना चाहिए, that is how to write the sentence. अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं तो it is only a student can learn easily, but reading and writing are the 2 scariest part of the IELTS. सभी बच्चों से आप जिससे मर्जी पूछ के देखिए, उसको सिर्फ और सिर्फ डर लगता है तो रीडिंग और राइटिंग से। लिसनिंग स्टूडेंट्स कहेंगे हम कर लेंगे, स्पीकिंग हो जाएगा। अब रीडिंग और राइटिंग, यही 2 पॉइंट्स हमारे स्ट्रेंथ माने जाते हैं, मेन स्ट्रेंथ, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स बहुत इजीली एक्सेल करते हैं। अब वो कैसे एक्सेल करते हैं? रीडिंग के अंदर एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। टाइम लिमिट है 60 मिनट्स। 60 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन करने हैं बच्चे को। 3 पैराग्राफ्स हैं, 3 पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ की लेंथ है 2200 से 2500 वर्ड्स। अगर मैं बच्चे को कहूं कि भाई तू पूरा पैसेज पढ़, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, टोटल 7000 वर्ड्स हो गए। पहले बच्चा 7000 वर्ड पढ़ेगा, इंग्लिश उसको आती नहीं है, अनकंफर्टेबल है, पहले तो वो उसकी ट्रांसलेशन करे इन देयर मदर टंग, इधर इन हिंदी और पंजाबी, फिर क्वेश्चन पढ़े, उसकी ट्रांसलेशन करे, फिर आंसर ढूंढे और फिर उसका आंसर लिखे। तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। 60 मिनट तो इसी में निकल गए, आंसर तो वो कर ही नहीं पाया ना। तो इस तरह को प्लान आउट करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज होती है कि कैसे आंसर किया जाए। जी बिल्कुल। जैसे हम 2 स्ट्रेटजीज डिस्कस करना चाहूंगी सर यहाँ पे, जो हम सबसे पहली 2 स्ट्रेटजीज बच्चों को सिखाते हैं, दैट इज स्कैनिंग एंड स्किमिंग। मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल सबसे पूछती हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या आप पूरी कहानी को पढ़ते हैं, पूरी खबरें पढ़ते हैं? सर आप एक न्यूज़पेपर लिया आपने, तो आप क्या पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते। हेडलाइंस, यस करेक्ट। आपने क्या पढ़ा? हेडलाइंस पढ़ी। ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। हेडलाइन पढ़ी, फोटोग्राफ देखी और पूरी स्टोरी हम लोगों ने खुद डेवलप करी। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जब मैं भी रीडिंग शुरू करवाती हूँ क्लास में, हम लोग यही बच्चों को कहते हैं कि आप टाइटल पढ़िए, सब टाइटल्स को पढ़िए, पिक्चर देखिए और पूरे जो 2200 वर्ड लिखे होंगे उसको एनालाइज करिए कि वो किसके बारे में होगा टॉपिक। जब बच्चा इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है तो उसके पास आइडियाज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फिर वो क्वेश्चंस पढ़ेगा भी तो उसको आंसर्स निकालने बहुत इजी लगेंगे, बिकॉज उसको इंटरेस्ट है। ऐसे अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग में भी बच्चे के पास आइडियाज होने चाहिए। हम इसके लिए क्या करते हैं क्लास में, जैसे ही हमने आइल्स का टॉपिक दिया लिखने के लिए एक एसे से पहले हम उस टॉपिक के ऊपर डिबेट करवाते हैं सर क्लास में। सिंपल सा टॉपिक आया, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सर हम क्लास को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट कर लूं तो एक तरफ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, एक तरफ हो जाते हैं कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो दोनों में डिबेट भी हो गया, स्पीकिंग का भी मौका मिला, लेकिन आइडियाज भी आ जाते हैं। फिर उन आइडियाज के लिए टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए, इडियोमेटिक लैंग्वेज कैसे लिखना चाहिए, बिकॉज यही चीजें हैं जिससे बच्चे को बैंड स्कोर मिलते हैं। सिंपल लाइंस लिखेगा, ऑब्वियसली 4.5-5 बैंड, इससे ज्यादा नहीं मिलते। अगर बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जाए, इडियोमेटिक स्ट्रक्चर की तरफ जाए, तो उसका बैंड स्कोर 7 और 7+ आता है। यही कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं, और यही रीजन है कि हमारे पास आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मैं क्लेम कर सकती हूँ सर, जो आता है बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी आता है। एक का बैंड स्कोर आया सर, वो अपने पीछे 10 को रेफरेंसेस आ जाते हैं। बच्चे ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5.5 ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 7 बैंड तक की जी हैगी इन्होंने को स्टूडेंट्स आम तौर पर अवेलेबल ने। तो तुसी अगर किसी भी कंट्री के जाना चाहते हो, इनिशियल आपको चाहिए आईलैट्स के बैंड्स। आईलैट्स के बैंड्स लेने के लिए तुहानू सब तो जरूरी चीज़ हैगी है वैस्टर्न ओवरसीज। इन्हों के ऑफिस के आके तुसी प्रॉपर जी हैगी है इंफॉर्मेशन लै सकते हो कि आईलैट्स के बैंड्स के तुसी अपनी जी डिवेलपमेंट किस तरह कर सकते हो। जो बच्चों के घट बैंड्स ने या जो बच्चे इंग्लिश के टेस्ट देने तो डरते हैं, वो किस तरह आईलैट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो एक मैं होर देखना चाहना, मैं पूछना चाहना कि जिमें वैस्टर्न ओवरसीज ही क्यों बच्चा
ਜੇਕਰ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ नहीं होता, ये नहीं बच्चे ने पता, ये क्यों आवे बच्चा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, क्यों अट्रैक्ट होवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सर देखो, सबसे पहला तो जो मेरा मोटिव है दैट इज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। वन स्टूडेंट्स कम टू माय ऑफिस ना, तो मैं उसको ये नहीं कहती एडमिशन ले सर, हम सबसे पहले उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास देते हैं। मैं आप सभी को भी इनवाइट करना चाहूंगी, आप ऑफिस में आइए, एक दिन एक डेमो क्लास लीजिए, इधर इट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश और ऑफ आइल्स, आइए पढ़ के देखिए। डेमो क्लास के बाद ही आप एनालाइज कर पाएंगे सर कि हम में और औरों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर स्पेशल एड ऑन क्लासेस दी जाती हैं ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए, बिकॉज अगर आपके पास ग्रामर नहीं है, यू आर अनेबल टू बी स्पीक, यू आर अनेबल टू बी राइट। अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी नहीं है तो आपकी लैंग्वेज डेकोरेट नहीं हो सकती। सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं आप, जिसके आपको मार्क्स नहीं मिलते, जिसकी आजकल वैल्यू नहीं है। करेक्ट। तो ग्रामर ऐड करी जाती है हमारे यहाँ पे, वोकैबुलरी करी जाती है, जो आई एम डैम श्योर अदर पीपल्स आर नॉट वर्किंग ऑन दिस। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग काम करते हैं वर्कशॉप्स पे। ऐसा नहीं है हम डेली पैटर्न में एक रीडिंग राइटिंग करवाए जा रहे हैं, ट्यूशन सेंटर बना रखा है, आओ रीडिंग राइटिंग करो, अपने घर जाओ। नॉट, दिस इज नॉट अ पैटर्न। आमतौर पर देखा जाता है कि बैचेस होंगे ने भी, बच्चे ने जी जाना जी उतो पिंडां तो आके बच्चे इत्थे आ जांदे ने, उन्होंने 7-7 8-8 हज़ार रुपए फीस भी पे कर देंगे ने, लेकिन वो हुंदा कि जी 2 घंटे की सवेरे क्लास लग गई जी, 2 घंटे की शाम को लग गई, वो सारे जिवें जिन्हों कहते हैं भेडां बकरियां सारे इको क्लास से बैठियां होंदियां ने, तां एक डिफरेंट करते हैं जी। हमारे यहाँ पर क्या होता है, रीडिंग राइटिंग की क्लासेस चलती हैं, बट कुछ डिफरेंट भी किया जाता है। वंस इन अ वीक एक मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें हमारी ब्रिटिश काउंसिल ट्रेंड फैकल्टीज सिर्फ और सिर्फ टिप्स और स्ट्रेटजीज देती हैं। वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जहां पे स्टूडेंट को एक टिप समझाया तो उसके ऊपर वर्क होता है, वर्कशॉप है, लाइव परफॉर्मेंस लेके स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब चीजें ही हमें ऐड करती हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बूस्टर किट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं स्टूडेंट को, हेडफोन देते हैं लिसनिंग के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆके ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿਪਸ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣਾ, इंग्लिश ते आईलैट्स दे विच किते ना किते फर्क जरूर है दोस्तों। जो टिप्स ये तुहानूं दे सकते हैं वो एक आम ट्यूटर नहीं दे सकता। इस करके अपने आईलैट्स के स्कोर्स दे विच तुसीं इंप्रूव करना चाहते हो या आईलैट्स के स्कोर ईजीली अच्छे स्कोर्स लैना चाहते हो, तो एक दफा वैस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस दे विच जरूर आओ। प्रदीप सर, तुहाडे तो एक मैसेज के तौर पर बच्चों नूं तुसीं की गाइड करना चाहते हो कि वैस्टर्न ओवरसीज के उत्ते विश्वास करना करो, बच्चों को तुसीं किस अलग ढंग दे नाल अवेयरनेस करनी है? बच्चे ने आइल्स करनी है जी, या अब्रॉड जाना है जी। सबसे बड़ी बात है कि हर काम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम अगर आइल्स की बात करें तो हमारे पास एक डेडिकेटेड फैकल्टी है, सारी की सारी डेडिकेटेड फैकल्टी है, पैशन के साथ पढ़ाती हैं, बच्चों के साथ हार्डवर्क करती हैं, बच्चों को जो बच्चे ने पैसा दिया उसकी उसको वर्थ मिलती है। दूसरा बात करें स्टडी वीजा की, हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट काउंसलर्स हैं। तो बच्चा आया मेरे पास, तो बच्चे को न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड वाली मैडम काउंसलिंग देती है, ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया वाली मैडम काउंसलिंग देती है, कनाडा गया तो कनाडा वाली देती है। फाइनली बच्चे की कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझसे मिलते हैं, क्योंकि आई एम आल्सो ए क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर। तो बच्चे को मतलब पर्टिकुलर हर एक कंट्रीज के लिए हर एक अलग अलग काउंसलर्स काम करती हैं। अगले एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਿੰਪੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਵੇਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।